اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیجیے، نماز قائم کیجیے، زکوٰۃ ادا کیجیے اور صلہ رحمی کیجیے۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 1396 ہے، مسلم کی حدیث نمبر 13 ہے اور نسائی کی پہلی جلد کی 328 نمبر حدیث ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کو بیان کیا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کو اس میں شامل کیا۔ تو زکوٰۃ کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی کو جنت میں داخلے کا یہ فارمولہ بتایا تو اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان اعمال میں نہ کوئی زیادتی کروں گا اور نہ کمی کروں گا۔ یعنی دیہاتی نے آپ سے پوچھا کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، مجھے اس کے لیے عمل بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، توحید کے لیے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو، اور اگر اللہ استطاعت دے تو حج کرو۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہ میں ان اعمال میں زیادتی کروں گا نہ کمی، اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے، کہ یعنی ان اعمال کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا، اور ان اعمال میں ایک عمل ہے فرض زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 1397 ہے، مسلم کی حدیث نمبر 14 ہے، احمد کی 8523 نمبر حدیث ہے اور ابن منزہ کی یہ 128ویں حدیث ہے۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر خطبہ دیا عرفہ میں، اور آپ نے فرمایا، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، 5 نمازیں ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو اور امیر کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ صحیح حدیث ہے بالکل، اور مجموعہ صحیحہ میں اس کا نمبر 868 ہے، ترمذی میں 616 ہے، مستدرک حاکم میں پہلی جلد کی 9ویں حدیث ہے، اور مسند احمد کی 5ویں جلد میں 251 نمبر حدیث ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تذکرہ کیا، اور نماز کے بعد ہمیشہ زکوٰۃ کی بات آئی۔ قرآن میں بھی آپ بار بار پڑھتے ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو زکوٰۃ دوسرے نمبر کا فریضہ ہے۔ ماشاءاللہ، ایک بندہ جب توحید کا اقرار کرتا ہے اور رسالت کا اقرار کرتا ہے، کلمہ شہادت پڑھتا ہے، تو پہلا فرض اس کا یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرے، دوسرا یہ کہ وہ زکوٰۃ دے، تیسرا یہ کہ وہ رمضان کے روزے رکھے، اور حج چوتھا فریضہ ہے بشرطے کہ اس کی استطاعت ہو۔ تو اللہ رب کریم نے بھی بہت اس کا اجر بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ سورہ روم کی 39 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، جو کچھ تم اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اپنا مال اور اجر دگنا حاصل کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے ہاں زکوٰۃ کی بہت اہمیت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ اور صدقات کسی کے مال کو کم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کی وجہ سے بندے کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو کوئی شخص اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ رب کریم اسے بلند کر دیتے ہیں۔ یہ مسلم کی 2588 نمبر حدیث ہے، اور ترمذی کی 2029 نمبر حدیث ہے۔ ابو قبشہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، 3 باتوں پر میں قسم اٹھاتا ہوں اور میں تمہیں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اسے یاد کر لو۔ یعنی ابو قبشہ نے کہا، میں 3 باتوں پر قسم اٹھاتا ہوں اور ان کے لیے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جسے یاد کر لو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقے سے بندے کے مال میں کمی نہیں آتی، اور جس بندے پر ظلم کیا گیا ہو اس نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اسے عزت اور شرف میں بڑھا دیں گے، اور جس بندے نے بھی سوال کا دروازہ کھولا تو اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیں گے۔ یہ صحیح ترغیب کی 869 نمبر حدیث ہے، اور ترمذی کی 2325 نمبر اور ابن ماجہ کی 4288 نمبر حدیث ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی، زکوٰۃ سے کمی نہیں آتی۔ زکوٰۃ مال کے شر کو ختم کر دیتی ہے، اللہ رب کریم نے یہ اسی لیے ہم پر فرض کی۔
जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये बताइए कि अगर कोई शख्स अपने माल की ज़कात अदा कर दे तो उसे क्या फ़ायदा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने माल की ज़कात अदा कर दी उसके माल का शर चला गया। और मुस्तदरक हाकिम में ये अल्फाज आते हैं कि जब तुम अपने माल की ज़कात अदा कर दोगे तो यकीनन तुमने अपने माल का शर दूर कर दिया। ये जो है सही तरगीब की भी रिवायत है और उसका नंबर 773 है। इब्ने खुज़ैमा की चौथी जिल्द की 13वीं हदीस है, हाकिम की पहली जिल्द की 390 नंबर हदीस है और तिबरानी की ये तीसरी जिल्द की 63 नंबर हदीस। तो असल में ज़कात की खूबियों में ये खूबी शामिल है, एक तो ये माल को बढ़ाती है, अल्लाह की नज़रों में इंसान को पसंदीदा बनाती है और ये माल की तहादत का ज़रिया है। लिहाजा खालिद बिन असलम कहते हैं कि हम अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के हमरा कहीं जा रहे थे। एक देहाती ने आपसे पूछा कि मुझे अल्लाह ताला के इस फरमान की तफसीर बताइए कि जो लोग सोने और चांदी का ख़जाना बना कर रखते हैं उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, इससे क्या मफ़हूम है। तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अगर किसी ने सोना चांदी जमा किया और उसकी ज़कात नहीं दी तो उसके लिए तबाही है। ये हुक्म ज़कात के अहकामात नाजिल होने से पहले था, लेकिन जब अल्लाह ताला ने ज़कात का हुक्म नाजिल कर दिया तब वही ज़कात माल और दौलत को पाक कर देने वाली है। ये बुखारी की 1404 नंबर हदीस है, इब्ने माजा की 1787 नंबर हदीस है। यानी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ज़कात की फ़र्ज़ियत से पहले अल्लाह ने मुतलकन ये कहा कि माल जमा मत करो, लेकिन जब ज़कात फ़र्ज़ हो गई तो अल्लाह रब्बे करीम ने इस हुक्म को साकित कर दिया ज़कात के साथ। अब अगर कोई माल जमा करता है मगर उसकी ज़कात अदा करता है तो उसका माल उसके लिए फितना नहीं बनेगा। तो आज तो सभी के पास माल है, ज़ेवरात जो हम बच्चियों को देते हैं जहेज़ में और बरी में भी डाला जाता है, उसके अलावा पैसे देते हैं, बैंक अकाउंट्स में हम सेविंग्स रखते हैं, तो उनको अगर वो निसाब तक पहुंचती हैं तो उन पर फिर ज़कात देना ही चाहिए ताकि वो माल हमारे लिए बाइस खैर हो, ना कि बाइस शर हो। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़कात के ज़रिए अपने अम्वाल को महफूज कर लो। ये सही तरगीब की रिवायत है, हदीस है और इसका नंबर 877 है और बहकी की रिवायत है और इसका नंबर 3557 है। तो माल ज़कात दे देने से माल महफूज हो जाता है, इनके वो शर से भी महफूज हो जाता है और अल्लाह वैसे भी पाक माल होने की बिना पर इसकी हिफाजत करते हैं। तो आप देखिए कि ज़कात देने वाला सिद्दीक़ीन और शुहदा के साथ इकट्ठा किया जाएगा। आमर बिन मुर्रा बयान करते हैं कि कबीला क़ज़ा का एक आदमी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये शहादत दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है और आप अल्लाह के रसूल हैं। मैं 5 वक्त की नमाज़ें अदा करता हूँ, रमज़ान के रोज़े रखता हूँ और उसमें मुमकिन हद तक क़याम करता हूँ और मैंने ज़कात भी अदा की, तो मेरा रुतबा क्या होगा, मैं जन्नत में किस मकाम पर हूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इसी अमल पर फोत हुआ वो सिद्दीक़ीन और शुहदा के साथ हो। सही तरगीब ही की रिवायत है, ये 749 नंबर है इसका और इसे अल-बज़ार ने भी रिवायत किया और इसका नंबर 45 है। इब्ने खुज़ैमा ने रिवायत किया, 2212 नंबर हदीस है। इब्ने हब्बान ने रिवायत किया, 3429 नंबर हदीस है। तो आप देखिए कि कितना बड़ा मर्तबा है जो फ़राइज़ अदा करे और ज़कात को उसके साथ शामिल करे। अब्दुल्ला बिन मुआविया कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने 3 काम किए उसने यकीनन ईमान का जायका चख लिया। पहला काम कि उसने सिर्फ अल्लाह की इबादत की और जान लिया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, और हर साल दिली खुशी और रग़बत के साथ अपने माल की ज़कात अदा की। यानी एक तो अल्लाह की इबादत को अल्लाह के लिए ख़ास किया, दूसरा अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया और उसको यकता खुदा माना, और तीसरा काम कि हर साल खुशी और रग़बत के साथ माल की ज़कात अदा की। ये अबू दाऊद की हदीस है, इसका नंबर 1400 है। सही तरगीब में ये 450 नंबर की हदीस है और अबू दाऊद में 1582 नंबर है इसका। तो आप देखिए कि अल्लाह रब्बे करीम के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि सही तौहीद के बाद जिसने ज़कात को अदा किया हर साल, तो वो ईमान का जायका चखेगा। ज़कात गुनाहों से कफ़ारे का भी बाइस है।
हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि फ़ितना से मुतल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आप लोगों में से किसी को याद है? हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं इस तरह इसे याद रखता हूँ जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था। इस पर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि आप इसे बयान करें। तो उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इंसान की आजमाइश उसके ख़ानदान, औलाद और पड़ोसियों में होती है। नमाज, ज़कात, सदका और अच्छी बातों के लिए हुक्म देना और बुरी बातों से रोकना इस आजमाइश का कफ़ारा बन जाती हैं। ये बुखारी की हदीस नंबर 1435 है, मुस्लिम की 144 नंबर हदीस है, तिरमिज़ी की 2258 नंबर और इब्न माजा की 3955 नंबर हदीस है। यानी आप देखिए कि माल फितना है, बाकी फितनों के साथ गिनवाया, माल फितना है और इसका कफ़ारा है ज़कात और सदका। तो लिहाजा देखिए कि फिर माल के फितने से बचाती है ना। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु से एक तवील हदीस आती है, उसका एक हिस्सा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका गुनाह को इस तरह मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। ये सही तिरमिज़ी की हदीस है, 2616 नंबर। तो ये सदक़ात में ज़कात भी आ जाती है। ज़कात फ़र्ज़ है और उसके अलावा जो नफली सदक़ात हैं वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। और सदका जो है ये अल्लाह के गज़ब को ख़त्म करता है। हज़रत अनस ने बयान किया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि बिला शक व शुबा सदक़ात परवरदिगार के गज़ब को ख़त्म कर देते हैं। और ये सिलसिला सहीहा की 1908 नंबर हदीस है। और पहले भी मैंने अर्ज़ किया कि सदक़ात में ज़कात भी आ जाती है। इसी तरह मुर्सद बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से किसी ने बताया कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि बिला शुबा रोज़े क़यामत मोमिन पर उसका सदका साया करेगा। ये हिदायतुर रवात की हदीस है, तीसरी जिल्द की, और हदीस का नंबर 300 है। अहमद की चौथी जिल्द की 233 नंबर हदीस है। तो आप देखिए कि ज़कात जो है फ़र्ज़ सदक़ात में से है, यानी सदक़े में वो सारी चीज़ें आती हैं जो आप अल्लाह की राह में दें। तो माली सदक़ात में ज़कात फ़र्ज़ है, तो जब नफली सदका भी साया करेगा तो ज़कात की तो क्या ही बात है। तो अल्लाह की राह में ज़कात देना बहुत फजीलत की बात है। खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह ने माल दिया और वो अल्लाह की राह में ज़कात अदा करते हैं। तो खुश दिली के साथ ज़कात अदा करें, ये आपके लिए बहुत सारे फ़वाइद का बाइस बनेगी। आपके माल को पाक कर देगी, माल के शर से आपको बचाएगी, माल की मोहब्बत आपके दिल से मिटाएगी और माल के फितने को ख़त्म करेगी। आपके लिए अल्लाह के यहाँ दर्जात की बुलंदी का सबब बनेगी। अल्लाह रब्बे करीम से आपको दुगना अजर मिलेगा, माल के लिए भी और आखिरत के लिए भी। आपके माल में बरकत होगी और सबसे बढ़कर बात यह है कि अल्लाह रब्बे करीम आपसे राज़ी हो जाए। अल्लाह रब्बे करीम हमें तौफीक अता फरमाए। और हाँ, एक अहम बात कि ईमान की लज्जत मिल जाएगी जो आज के दौर में मफकूद है, ईमान की लज्जत मिल जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह आपको माल भी अता करे, आपके माल में बरकत भी दे और आपको उस माल की ज़कात की अदायगी की तौफीक भी दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक।